بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں آج تک نیوز۔ اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 35 اقساط سن چکے ہیں اور اب کس نمبر 36 ملاحظہ فرمائیں۔ سمیترا چند لمحے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر باہر نکل کر اکبی گیراج کی طرف چلی گئی۔ میں بھی پورچ میں آ گیا۔ 10 منٹ بعد سمیترا فیارڈ ڈرائیو کرتی ہوئی پورچ میں آ گئی اور نیچے اتر کر مجھے رکنے کا اشارہ کر کے اندر چلی گئی۔ اس کی واپسی میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ اس کے ہاتھ میں چندری کی قسم کا کوئی کپڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے وہ کپڑا پٹکے کی طرح میری کمر کے گرد لپیٹ کر ایک گھیرا لگا دی اور مسکراتے ہوئے بولی، اب تم لگتے ہو راجپوت۔ میری داڑھی مونچھیں بڑی ہوئی تھی، راجستھانی لباس پہن رکھا تھا، سر پر بلدار سندوری رنگ کی پگڑی بھی تھی، صرف ایک پٹکے کی کسر رہ گئی تھی جو سمیترا نے پوری کر دی۔ میں نے فیارڈ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا اور کار جیسے ہی حرکت میں آئی سمیترا اندر پہنچ گئی اور جب میری کار گیٹ کے قریب پہنچی گیٹ خود بخود کھل گیا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ سمیترا نے اندر جا کر انٹر کام کے قریب لگا ہوا سوئچ آن کر دیا تھا جس سے گیٹ کھولا اور بند کیا جا سکتا تھا۔ یہ انٹر کام برآمدے والے دروازے کے اندر کی طرف لگا ہوا تھا اور کھڑکی سے گیٹ کی طرف بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے ہاتھ باہر نکال کر ہلا دیا اور گیٹ سے نکلتے ہوئے کار کی رفتار بڑھا دی۔ یہ فیارڈ کار دیکھنے میں اگرچہ پرانی سی لگتی تھی لیکن اس کا انجن بہتر حالت میں تھا۔ ڈیش بورڈ کا جائزہ لیتے ہوئے میری نظر فیول بتانے والی ڈائل کی طرف اٹھ گئی۔ ٹینکی میں پٹرول کم تھا۔ کچھ آگے نکل کر میں نے کار ایک پٹرول پمپ پر روکی اور ٹینکی فل کرا لی۔ اس رات ہم ملٹن میں اس کار پر آئے تھے۔ ہوٹل کے پارکنگ گیٹ میں داخل ہوتے ہوئے تو شاید کسی نے نوٹس نہیں لیا ہوگا، لیکن 6ٹھی منزل پر ہنگامے کے بعد جب ہم لوگ واپس بھاگے تو شکتی لال کے ایک آدمی نے گیٹ پر قبضہ کر رکھا تھا اور ہوٹل میں آنے والوں کو باہر ہی روکا ہوا تھا۔ ہم اس فیارڈ پر بڑی تیزی سے ہوٹل سے نکلے تھے۔ ممکن ہے باہر کھڑے ہوئے لوگوں نے اس کار کو دیکھا ہو، مگر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا نمبر کسی نے نوٹ نہیں کیا ہوگا۔ ویسے شہر میں اس رنگ کی کئی کاریں تھیں اور ضروری نہیں تھا کہ اس کار کو پہچان لیا جائے، اس لیے آج میں اس کار پر آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ گزشتہ رات ہمارے پاس سفید ٹویوٹا تھی۔ پولیس نے اس کار کا بھی پیچھا کیا تھا۔ تعاقب کرنے والے پولیس کی گاڑی بہت دور تھی، ظاہر ہے اتنی دور سے وہ کار کا نمبر نوٹ نہیں کر سکے، مگر ان کے ذہن میں سفید کار ضرور ہوگی۔ ہو سکتا ہے سفید کاروں کو چیکنگ کے لیے روکا جا رہا ہو، اس لیے میں نے آج اس سفید ٹویوٹا کی بجائے اس فیارڈ کو ترجیح دی تھی۔ جب میں بس اسٹینڈ کے علاقے میں پہنچا تو 2:45 بجے تھے۔ میں کار کو مختلف چھوٹی سڑکوں پر گھماتا رہا اور پھر ٹھیک 3 بجے اسے بمبئی کالیا ریسٹورنٹ کے سامنے والے پارکنگ پلاٹ پر روک لیا۔ نیچے اتر کر میں نے اپنے آپ کا تنقیدی جائزہ لیا اور راجپوتی شان سے ریسٹورنٹ کی طرف چلنے لگا۔ بمبئی کالیا ایک معیاری ریسٹورنٹ تھا۔ شیشے والے 2 دروازے پر ہندی اور انگریزی حروف میں داخلہ حقوق محفوظ لکھا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ یہ ریسٹورنٹ شرفاء کے لیے مخصوص تھا اور ہوٹل کی انتظامیہ کسی بھی شخص کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے کان سے پکڑ کر باہر نکال سکتی تھی۔ میں 1-2 مرتبہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا اور شرافت کی آڑ میں یہاں جو کچھ ہوتا تھا اس سے بھی واقف تھا۔ ہوٹل کی طرف بڑھتے ہوئے اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ شکتی کو یہاں بلا کر غلطی نہیں کی، ممکن ہے اس کے حلیے کی وجہ سے اسے اندر ہی داخل نہ ہونے دیا جائے، لیکن پھر اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ شکتی جیسے لوگ اپنا راستہ بنانا جانتے ہیں۔ میں جیسے ہی قریب پہنچا دربان نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے راجپوتانہ شان سے سر ہلایا اور اندر داخل ہو گیا۔ بہت وسیع و عریض حال تھا۔ بیزیں ایک دوسرے سے قدرے فاصلے پر بڑے سلیقے سے لگی ہوئی تھی۔ آخر میں جھونپڑے کی طرز کے بنے ہوئے کئی پرائیویٹ کیبن تھے۔ بائیں طرف اوپر جانے کا زینہ تھا۔ زینے کے ساتھ دیوار پر فیملی رومز کی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ اوپر بھی اسی طرح کے کیبن تھے، اس لیے زینے پر صرف انہی لوگوں کو جانے کی اجازت تھی جن کے ساتھ خواتین ہو، اور میں جانتا تھا کہ اوپر ان فیملی کیبن میں کیا ہوتا ہے۔ میں دروازے سے 2 قدم آگے بڑھ کر رک گیا اور متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ حال میں بہت مدھم روشنی تھی، بہت ہلکی موسیقی عجیب سا تاثر دے رہی تھی۔ دوسری طرف 5ویں میز پر ایک عورت اور مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سرسری انداز میں ان کی طرف دیکھا، لیکن اس شخص کو ہاتھ ہلائے دیکھ کر میں نے دوبارہ اسی کی طرف دیکھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ شکتی تھا۔ پہلی نظر میں واقعی اسے میں پہچان نہ سکا۔ سلیقے سے تراشے ہوئے بال، درمیان سے مانگ نکلی ہوئی، ہندو ہونے کی خاص نشانی، ماتھے پر سرخ ٹیکا، کلین شیو سفید شرٹ اور گہرے نیلے رنگ کی جینز، پیروں میں نئے جوگرز۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی بدکماش اور بدماش آدمی ہے۔ بڑا شریفانہ چہرہ تھا اور اس کے ساتھ لڑکی بھی بڑی پوٹ قسم کی تھی۔ اس کی عمر 24 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ دراز قامت، سڈول جسم، بڑے تیکھے نقش، گردن تک کٹے ہوئے کھتئی رنگ کے لہریے دار بال، گلابی رنگت اور غزال جیسی موٹی آنکھیں جن میں ستاروں جیسی چمک تھی۔ مجھے یاد آیا کہ شکتی نے پہلے بتایا تھا کہ اس کی پارٹی میں چند افراد کا اضافہ ہو چکا ہے، جن میں 2 چھوکریاں بھی شامل ہیں، اور مجھے حیرت تھی کہ اس جیسی حسین چھوکری شکتی کے ہاتھ کیسے لگ گئی، جبکہ ایک روز پہلے تک شکتی کا حلیہ بھی ایسا تھا کہ کوئی شریف آدمی اس کے قریب پھٹکنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن پھر یہ خیال آیا کہ یہ لڑکی اگر شریف ہوتی تو شکتی جیسے آدمی کے قریب نہ آتی۔ ان دونوں نے اٹھ کر میرا استقبال کیا۔ شکتی نے تو حسب معمول جھک کر میرے چرن چھوئے تھے۔ یہ مدھو ہے گرو، شکتی نے اس کا تعارف کرایا۔
साली को कोई और नहीं मिला था, मुझ पर ही मर मिटी। शक्ति के इस जुमले पर मैं मुस्कुराए बगैर ना रह सका। मधु भी मुस्कुरा दी और फिर चंद मिनट की गुफ्तगू के बाद ही मैंने अंदाजा लगा लिया कि मधु बड़ी बेतकल्लुफ और बेबाक किस्म की लड़की थी। हम जितनी देर वहां बैठे रहे वो मेरी तरफ ही मुतवज्जो रही। उसने साड़ी पहन रखी थी और लिबास तो वैसे ही मुख्तसर था। उस पर सितम यह कि वो बार बार इस तरह पहलू बदलती कि मैं उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो जाता। मुंबई कालिया रेस्टोरेंट में भी लड़कियां ही सर्व करती थी। शक्ति ने वेटर को बुलाकर काफी मंगवाई और वो काफी की चुस्की लेते हुए बोला, तुमने फोन पर ठाकरे के बारे में कुछ कहा था गुरु, उसके बारे में क्या जानना चाहते हो? उसकी वल्दियत मशकूक है, मैंने कहा, और फिर अमृत ठाकरे के बारे में वो सब कुछ बता दिया जो बैरू सिंह से मालूम हुआ था। तुम तो उसका पूरा शजरा जानते हो गुरु, शक्ति हैरत से मेरी तरफ देखते हुए बोला। अगर किसी दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें उसके बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए, मैंने कहा। बहरहाल कल रात विशंबर सिंह से मुझे अमृत ठाकरे के पास ही ले जाना चाहता था ताकि मुझ पर तशद्दुद करके पंडित बैरू के बारे में मालूम कर सके। वो बैरू की दौलत हासिल करना चाहते हैं। विशंबर तो खत्म हो गया, ठाकरे हमारे लिए मसला बन सकता है, इसलिए उसका बंदोबस्त अभी हो जाना चाहिए। मैंने ठाकरे के बारे में मालूम कर लिया है गुरु, शक्ति ने जवाब दिया। वो अपने 2 चेलों के साथ हनुमान मंदिर में ठहरा हुआ है। मंदिर का पुजारी राम प्रकाश उसके आने से खुश नहीं है, लेकिन उसके इशारों पर चलने पर मजबूर है। और दूसरे काम का क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरा इशारा नागराज की तरफ था। उसका भी आज पता चल जाएगा, शक्ति ने जवाब दिया। आज सुबह एक आदमी बानूट की नजरों में आ गया था, उसके पीछे लगा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आज रात तक उसके ठिकाने का पता चल जाएगा। तो फिर क्यों ना इसी दौरान अमृत ठाकरे को चेक कर लिया जाए, मैंने कहा। जैसा तुम कहो, शक्ति बोला, लेकिन मेरे ख्याल में ठाकुरे के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। वो लातादाद जराइम में पुलिस को मतलूब है। अगर उसे पता चल जाए कि पुलिस हनुमान मंदिर की तरफ आ रही है तो वो वहां से भागने में देर नहीं लगाएगा। मैंने ठाकरे के बारे में जो कुछ सुना है उसके हवाले से मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहता। अभी तो ये अकेला है, इस पर काबू पाया जा सकता है, और अगर इसने नागराज से राब्ता कर लिया तो ये भी एक बड़ा मसला बन जाएगा। तो ठीक है गुरु, देख लेते हैं, शक्ति ने जवाब दिया। और जब हम मुंबई कालिया रेस्टोरेंट से निकले तो 4:30 बज रहे थे। मधु कार की पिछली सीट पर बैठ गई और शक्ति मेरे साथ अगली सीट पर। मैं कार को मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाते हुए नेहरू मार्ग की तरफ ले आया और फिर उसे हनुमान मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया। उस तरफ 2-3 और तारीखी नोयत के जैन मंदिर भी थे, इसलिए उस वक्त इस सड़क पर किसी कदर रौनक भी थी। उस रोड पर 2-3 बसें भी थी जो एक मखसूस पॉइंट तक जाती थी। शाम का अंधेरा फैलते ही ये बसें भी बंद हो जाती। नेहरू मार्ग से तकरीबन 2 मील आगे निकलने के बाद मैंने कार दाईं तरफ एक और सड़क पर मोड़ ली। उस सड़क के दोनों तरफ छोटे छोटे टीले थे जो सब्जे से ढके हुए थे। रंग बिरंगे जंगली फूल खुशनुमा मंदिर पेश कर रहे थे। उस सड़क पर तकरीबन 2 फरलांग आगे हनुमान मंदिर था। ये भी एक कदीम मंदिर था मगर ज्यादा बड़ा नहीं था। यात्रियों की एक बड़ी तादाद उस तरफ आया करती थी। मंदिर से जरा पहले सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानों का सिलसिला शुरू हो गया। फूल, मूर्तियां, नारियल, मिठाई और बहुत सी चीजें जो भेंट के तौर पर मंदिर में चढ़ाई जाती थी। मैंने कार एक तरफ खड़ी कर दी जहां 5-6 गाड़ियां पहले भी खड़ी थी। इस वक्त यात्रियों की एक माकूल तादाद यहाँ मौजूद थी। लोग मंदिर में आ जा रहे थे। हमने एक बूढ़ी औरत से कुछ फूल खरीद लिए और मंदिर की तरफ चलने लगे। मंदिर एक टीले पर था। उस तक पहुंचने के लिए कुशादा सीढ़ियां ही बनी हुई थी। सीढ़ियों की दोनों तरफ भिखारी चादरें बिछाए बैठे हुए थे। मंदिर से वापस आने वाले यात्री उन भिखारियों के सामने कुछ न कुछ डाल देते। मंदिर की इमारत बाहर से बज़ाहिर छोटी लगती थी मगर अंदर से हाल बहुत बड़ा था। सामने ही चबूतरे पर हनुमान की एक बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई थी जिसके सामने फूलों और भेंट के तौर पर चढ़ाई जाने वाली चीजों का अंबार लगा हुआ था। मूर्ति के सामने फूल चढ़ाए जाने के बाद हम भी दूसरे लोगों की तरह इधर उधर घूमने लगे। मैंने जल्द ये अंदाजा लगा लिया कि इस मंदिर में कोई तय खाना या खुफिया रास्ता भी था। मेरी छठी इस बार बार किसी गड़बड़ का एहसास दिला रही थी। मैंने कई मरतबा महसूस किया जैसे कोई मेरी निगरानी कर रहा हो। मैंने कई बार मुड़कर देखा मगर आसपास कोई मशकूक आदमी दिखाई नहीं दिया। एक मरतबा मुड़कर देखा तो मधु एक पुजारी से बातें कर रही थी। वो पुजारी हाथों में इशारे करते हुए गालबन उस मंदिर के बारे में बता रहा था। शक्ति मेरे साथ साथ था। चंद मिनट दोबारा इधर उधर देखा तो मधु कहीं नजर नहीं आई और ना ही पुजारी नजर आया जिसके साथ वो बातें करती हुई देखी गई थी। शक्ति परेशान हो गया। वो मधु को इधर उधर तलाश करने लगा। बाहर भी देखकर आया मगर मधु कहीं नहीं दिखाई दी। ये कहाँ गायब हो गई? वो एक बार फिर इधर उधर देखते हुए बड़बड़ाया। यहीं कहीं होगी, चिंता क्यों करते हो, आ जाएगी, मैंने कहा। और फिर मुझे वो पुजारी नजर आ गया। करीब से गुजरा तो मैंने उसे रोक लिया। महाराज, कुछ देर पहले मेरे इस दोस्त की पत्नी वहां खड़ी आपसे बातें कर रही थी। कहाँ चली गई वो, मैंने पूछा। वो देवी, पुजारी बोला, महाराज स्वामी विश्वासनाथ का आशीर्वाद लेने गई है। बड़े महान और ज्ञानी है स्वामी जी। उनके आशीर्वाद से मन की हर आशा पूरी हो जाती है। आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें भी स्वामी जी के पास ले चलता हूँ। मैंने शक्ति की तरफ देखा और फिर हम दोनों उस पुजारी के पीछे चल दिए। एक रायदारी में से होते हुए हम एक कमरे में दाखिल हुए। ये कमरा खाली था।
सामने एक तख्त रखा हुआ था जिस पर मसनद बिछी हुई थी। यहाँ रुक जाओ, पुजारी ने हमें कमरे के वस में रोक दिया। स्वामी जी उस देवी के साथ अभी आते हैं। पुजारी मसनद के करीब जाकर खड़ा हो गया और फिर दूसरे इलम में मुझे यूं लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई हो। मैंने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका और जमीन की गहराई में गिरता चला गया। तकरीबन 10 फुट नीचे मैं अपने पैरों पर ही गिरा था। गिरते ही मैं लड़खड़ा तो गया लेकिन मैं फौरन ही संभल गया। शक्ति भी मेरे करीब गिरकर कलाबादी खा गया। वो बड़ी मुश्किल से उठ सका। उसने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए थे। उसकी कमर को झटका आ गया था। उसके चेहरे पर अज़ियत के तासरात साफ नजर आ रहे थे। मैंने ऊपर देखा, छत से नीचे की तरफ लटके हुए 2 तख्ते आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहे थे और फिर वो एक दूसरे के साथ मिलकर बराबर हो गए। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। ये खासा वसी व अरीज कमरा था जिसके एक तरफ दरवाजा भी नजर आ रहा था जो बंद था। मेरे दिन में अचानक मधु का ख्याल ऊपर आया। उसे मैंने उस पुजारी से बातें करते हुए देखा था और वही पुजारी हमें इस कमरे में लेकर गया था जहाँ से हम उस तय खाने में टपक पड़े थे। मेरी छठी हिस्स जिस गड़बड़ का एहसास दिला रही थी वो दुरुस्त निकला था और मेरे जहन में अब मधु के बारे में शुबात सर उभार रहे थे। मधु 4 रोज पहले शक्ति की पार्टी में शामिल हुई थी। इसमें कोई शुबा नहीं था कि वो जराइम पेशा थी। हो सकता है उसका ताल्लुक पहले से ये नागराज या किसी और पार्टी से रहा हो और वो किसी खास मकसद के तहत शक्ति की पार्टी में शामिल हुई हो। उसने रेस्टोरेंट में बेरी और शक्ति की बातें भी सुनी थी और इस मंदिर में आकर वो अपना काम कर गुजरी। उस पुजारी को वो यकीनन पहले से जानती होगी। ए साला, शक्ति इधर उधर देखते हुए बड़बड़ाया। हम मधु को तलाश कर रहे थे और इस चूहे दान में फंस गए। फिक्र मत करो, वो भी यहीं आ जाएगी मगर हमारी तरह नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर तकरीबन उसी वक्त दरवाजा खुला और 2 आदमी बरामद हुए। उनमें एक के हाथ में चौड़े ब्लेड वाली तलवार थी और दूसरे के हाथ में डबल बैरल बंदूक जिसमें गालबन 12 बोर के कारतूस इस्तेमाल होते थे। उनके हुलिये भी ऐसे थे जैसे अभी अभी जंगल से आए हों। बेताशा बड़े हुए बाल, बड़ी बड़ी मूंछें और स्याह लिबास जो इंडियन फिल्मों में अक्सर डाकुओं को पहनाए जाते थे। उन दोनों की आंखें सुर्ख थी। मैं उन्हें देखकर हंस पड़ा। वो अपनी शायद 50 साल पहले के दौर में रह रहे थे। तलवार और डबल बैरल बंदूक उस दौर की यादें थी। आज के दौर में तो डाकू भी जदीद तरीन ऑटोमेटिक असला इस्तेमाल करते हैं। उन दोनों ने हमें तलवार और बंदूक की जद पर लिया और फिर वो हमारे पीछे पहुंच गए। बंदूक की नाली मेरी पूंछ से लगी और तलवार की नोक शक्ति की कमर छूने लगी। चलो आगे चलो, उनमें से एक ने घुर्रा कर कहा। हम बेचूं चरा आगे चल पड़े। ये भी गनीमत था कि उन्होंने हमारी तलाशी नहीं ली थी। मेरे पास पिस्तौल मौजूद था और मुझे यकीन था कि शक्ति ने भी अपनी लिबास में पिस्तौल छुपा रखा होगा। लगता था कि तय खाना मंदिर की इमारत से भी बड़ा था। ये एक तवील रायदारी थी जिसके दाएं बाएं कमरे थे। तकरीबन 50 फुट आगे रायदारी दाईं तरफ मुड़ गई और उसके इख्तिताम पर एक और वसी कमरा था। यह कमरा बहुत शानदार था। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था। थोड़े थोड़े फासले पर रेशमी गलाफों वाले गाव तकिए रखे हुए थे। बाईं तरफ एक शानदार कुशन पर एक पहलवान किस्म का लंबा तिरंगा आदमी बैठा हुआ था। उसके सर के बाल बहुत छोटे, कानों में बड़ी बड़ी बालियां, गले में सोने की मोटी चेन और एक हाथ की 2 उंगलियों में मोटे मोटे निगिनों वाली चांदी की अंगूठियां थी। उसने सफेद धोती बांध रखी थी। ऊपर काले रंग की वस्कट थी जिसके बटन खुले हुए थे और बालों का भरा सीना नजर आ रहा था। कमर पर चमड़े का चौड़ा बेल्ट बंधा हुआ था जिसमें खमदार खंजर उड़सा हुआ था। एक लड़की उसके घुटने से लगी बैठी थी। उसके जिस्म पर लिबास बराए नामी था। दूसरी लड़की को उसने बगल में दबोच रखा था। वो मधु थी। करीब ही दूसरी मसनद पर वो पादरी बैठा हुआ था जो मंदिर से हमें इस कमरे में लेकर आया था। मैंने कहा था ना कि मधु भी तुम्हें यहीं मिलेगी। मैंने शक्ति की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा। इसकी तो शक्ति कहता हुआ आगे बढ़ा मगर गद्दी पर पड़ने वाले गुंसे ने उसे जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। अमर उठाकर दोनों लड़कियों को एक तरफ धकेल कर खड़ा हो गया। उसका कद 6.5 फुट से ऊपर निकलता हुआ था। गुस्से की शिद्दत से उसकी आंखें कुछ और भी सुर्ख हो गई। उसने शक्ति को एक जोरदार ठोकर रसीद कर दी और खंजर के दस्ते पर हाथ रखकर घुर्राया। हम नागराज नहीं हूँ जो तुमसे डर कर भाग जामेंगे। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। लोग हमका हरामी बोलत है और हम हों भी हरामी। हमका बाप भी हरामी था। हमने अपनी बहन के साथ बलात्कार की कोशिश किया मगर वो साली बच गई। मैं तुम्हारे बारे में इससे भी ज्यादा जानता हूँ। मैंने कहा ये सब हम तुमका इस वास्ते बताऊं हूँ कि हम कितना बड़ा हरामी हूँ। इसमें शुबा क्या है? मैंने कहा हम लातन से बंदे को पकड़कर चेहरे पर देवत मारे हैं। उसने हाथों को हरकत देकर बताया वो किस तरह बंदे को टांगों से पकड़कर चीर देता है। हम ठाकरे हूँ ठाकरे। वो बात जारी रखते हुए बोला नागराज बुज़दिल है। उसकी ताकत दूसरों में है। दूसरे साले मर गया तो वो भी भाग गया। हम अपने अंदर ताकत रखता हूँ। उसने दोनों बाजू उठाकर बॉडी बिल्डरों की तरह मसल दिखाए। हम तुमका और बहुत कुछ दिखाऊंगा। ये छोकरिया है ना। उसने मधु को सिर्फ इशारा किया। इसने तुम लोगों के साथ धोखा किया और ये समझता है कि हम इसको अपनी रानी बना लूंगा। सारी हमका एक टाइम नहीं संभाल सकेगी। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ फिर बोला ये साला खूबसूरत छोकरी लोग किसी का नहीं होता। तुम्हारा भी नहीं। थाली का बैंगन माफिक कभी इधर को लुढ़कता है कभी उधर को। तुम साला हमसे बात करो।
हम अब तक तुम्हारी बकवास का मतलब नहीं समझ सका, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। तुम हमका उस साले बैरू के पास ले जाओ, बड़ी माया है उस हरामी के पास और हमको उसका जरूरत है। ठाकुर ने कहा, अगर मैं तुम्हें बैरू के बारे में कुछ ना बताऊं तो। वो बेल्ट में उड़ता हुआ खंजर निकालते हुए बोला, तुम साला अकेला आदमी है जो बैरू के बारे में जाने तो। हम तुमका ऐसे काटूंगा कि तुम खुद बोलेगा, ए हरामी लोग। ये आखिरी 3 अल्फाज उसने अपने आदमियों से मुखातिब होकर कहे थे। इस दूसरे को उधर ले जाओ, उस नुक्कड़ में। उसने एक तरफ इशारा किया। रुक जाओ ठाकरे, ये ऐसे नहीं बोलेगा। मधु उठकर उसके करीब आ गई। मैं बताती हूँ ये कैसे जबान खोलेगा। ठाकरे खूनख्वार नजरों से उसकी तरफ देखता रहा और फिर उसके गिरीबान पर हाथ डालकर जोरदार झटका दिया। उसका लिबास फट गया। मधु बरहना होगी। साली हरामी, ठाकरे बोला, हम का बतावत है कि ये कैसे जबान खोलेगा? अपने यार को बचाना चाहती है। मधु की आंखों में भी खून उतर आया और फिर उसने जो हरकत की वो हम सब की तवक्को के खिलाफ थी। उसने बड़ी फुर्ती से साड़ी की फाल में छुपा हुआ लेडी ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाल लिया और उसके पैर उसे लगाते हुए घुर्राई। साला हरामी, तुम समझते कि मैं इनाम के लालच में इन्हें यहाँ लाई थी? ये खंजर फेंक दो और अपने आदमियों से भी कहो कि हथियार फेंक दे, वरना मैं इस छोटे से पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारे शरीर में उतार दूंगी। ठाकरे अपनी जगह पर बेइसु हरकत होकर रह गया, मगर उसने खंजर नहीं फेंका। मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तुमने मेरे हुक्म पर अमल नहीं किया तो गोली चला दूंगी, मधु ने कहा और गिनती गिनने लगी। अभी उसने 2 ही कहा था कि ठाकुर ने खंजर फेंक दिया और अपने आदमियों को भी हथियार फेंकने का इशारा किया। वो पुजारी इसी दौरान अलग थलग बैठा रहा था, लेकिन सूरत-ए-हाल बदलते देखकर वो बदहवास होकर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसने दूसरी लड़की का हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा भी धुआं हो रहा था। पुजारी उसका हाथ पकड़े आहिस्ता आहिस्ता एक अंदरूनी दरवाजे की तरफ खिसकने लगा। उन दोनों आदमियों ने हथियार फेंक दिए थे। मैंने शक्ति को इशारा किया। वो तलवार उठाने के लिए झुका तो उन दोनों में से एक ने जय काली मां का नारा लगाते हुए उस पर छलांग लगा दी। शक्ति बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया और फिर संभलते हुए उसने भी बजरंग बली का नारा बुलंद करते हुए अपने हरीफ की खोपड़ी पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। दूसरा आदमी बंदूक की तरफ लपका, लेकिन मैंने उसे अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। वजह से ही झुका मेरी ठोकर उसके सीने पर पड़ी और वो कराता हुआ पीछे उलट गया। मैंने उस पर एक और ठोकर लगा दी और ठीक उसी लम्हे मधु की चीख सुनाई दी। अमृत ठाकरे ने भी सूरत-ए-हाल से पूरा फायदा उठाया था। वो बड़ी तेजी से नीचे झुका और मधु को टांगों से पकड़कर उछाल दिया। मधु चीखती हुई शक्ति से टकराई और वो दोनों जमीन पर ढेर हो गए। पिस्तौल अभी तक उसके हाथ में ही थे। गिरते हुए उसका ट्रैगर दब गया। ठाकरे उस वक्त अपना खंजर उठाने के लिए झुक रहा था। मधु के पिस्तौल से निकली हुई गोली उसकी एक उंगली की पूर को उड़ाती हुई निकल गई। वो खंजर उठाए बगैर एक झटके से सीधा हुआ और उसने भी उस दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी जहां पुजारी उस लड़की को लेकर गायब हो चुका था। मधु और शक्ति आपस में उलझे हुए थे और ठाकरे के दोनों आदमी मुझे लिपट गए। वो काली मां का नाम लेकर मुझ पर घुंसे बरसा रहे थे। उनका बख्तों में फौलाद भरा हुआ था। वंदी हथौड़ों की तरह ज़रबें थी जो मुझ पर बरस रही थी। एक घुंसा सर पर लगा तो मेरा दिमाग घूम गया। आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी रक्स करती रही। फिर अंधेरे की चादर फैलने लगी। मैं अपने सर को जोर जोर से झटके देने लगा। इसी दौरान फायर की एक और आवाज गूंजी। उसके साथ ही मेरे कान के करीब एक चीख उभरी और फिर यूं लगा जैसे कोई दरख्त जड़ से उखड़कर मेरे ऊपर आन गिरा हो। मैं उसके बोझ तले दबता गया। फिर किसी ने वो बोझ मेरे ऊपर से उठाकर एक तरफ पटक दिया। मैं अब भी जोर जोर से सर झटक रहा था। मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे, लेकिन तारीकी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। मुझे दोनों बाहों से पकड़कर उठा दिया गया था। गुरु गुरु होश में आओ। ये शक्ति की आवाज थी जो किसी गहरे कुएं की तह से आती हुई महसूस हुई। मैंने सर को 2 झटके दिए और फिर मेरा ज़हन साफ होता चला गया। मुझे शक्ति और मधु ने संभाल रखा था। सामने कालीन पर उन दोनों आदमियों में से एक की लाश पड़ी थी। उसके सर से खून बह रहा था। वो कहाँ गए? मैंने इधर उधर देखते हुए कहा। वो भाग गए गुरु, उधर से। शक्ति ने अंदरूनी दरवाजे की तरफ इशारा किया। चलो पकड़ो उन्हें। मैं एकदम दरवाजे की तरफ लपका। अब मैं पूरी तरह अपने हवास में आ चुका था। मधु की साड़ी खुल गई और वो पैरों में उलझ गई। उसने पल्लू और फाल को समेटकर एक हाथ में संभाला और हमारे साथ उस दरवाजे की तरफ दौड़ी। पिस्तौल उसके दूसरे हाथ में था। दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए मैंने भी अपने लिबास में छुपा हुआ पिस्तौल निकाल लिया। पहले जब मधु ने ठाकरे को अपने पिस्तौल की जद पर लिया था तो मुझे पिस्तौल निकालने का मौका ही नहीं मिल सका। वो भी एक कमरा था जिसमें बेड वगैरह लगा हुआ था। उस आगे एक दरवाजा था जो बंद था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दूसरी तरफ से कुंडा लगा हुआ था। ये 2 पट का दरवाजा था। मेरी और शक्ति की 2-3 मुश्तरका टकरों से दरवाजा खुल गया। दूसरी तरफ पहले चंद गज तक रायदारी और फिर तंग सी सुरंग थी। हम उस सुरंग में दौड़ते चले गए। आगे शक्ति था, पीछे मैं और आखिर में मधु। तकरीबन 100 गज उस सुरंग के दाने पर रोशनी दिखाई दे रही थी। हम दौड़ते हुए सुरंग के दाने से बाहर आ गए। दाने के आगे कीकर की कद आदम कांटेदार झाड़ियां थी जो दूर तक फैली हुई थी। हम बड़ी मुश्किल से उन झाड़ियों से बाहर आ सके। मुझे हैरत थी कि वो लोग इतनी जल्दी उन कांटेदार झाड़ियों से निकल कैसे गए थे। बाईं तरफ दूर तक इस किस्म की झाड़ियां फैली हुई थी, जबकि दाईं तरफ झाड़ियां नहीं थी।
उस वक्त सूरज गुरूब हो चुका था। आसमान पर मशरिक में बादलों के पैरे तैर रहे थे जिन पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी और फिजा में हल्की सी सुर्खी थी। मैं एक छोटे से टीले पर चढ़कर इधर उधर देखने लगा और फिर वो 3 साए दौड़ते हुए नजर आए। सबसे आगे पुजारी था, उसके पीछे ठाकरे और उसके आखिर में वो आदमी जो बाद में जिंदा बचकर भाग निकला था। शक्ति मेरे साथ ही खड़ा था, उसने गोली चला दी, लेकिन वो लोग पिस्तौल की रेंज से बहुत दूर निकल चुके थे। शक्ति ने 2-3 और फायर झोंक दिए। गोलियों की आवाज देर तक पहाड़ियों में बात गश्त पैदा करती रही। बेकार है, मैंने कहा, गोलियां जाया मत करो। मैं एक बार फिर दौड़ते हुए उन सायों की तरफ देखने लगा। मुझे वो लड़की नजर नहीं आ रही थी जिसे पंडित अपने साथ लेकर भागा था। हो सकता है वो किसी टीले या झाड़ियों की आड़ में हो। भाग गए साले। शक्ति की आवाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। मधु हमारे साथ नहीं थी। मधु कहाँ है? मैंने सवालिया निगाहों से शक्ति की तरफ देखा। मधु? वो इधर उधर देखते हुए बड़बड़ाया और फिर ऊंची आवाज में मधु को पुकारने लगा। मैं यहाँ हूँ। झाड़ियों की तरफ से मधु की आवाज सुनाई दी। हम दोनों उसकी तरफ लपके। मधु झाड़ियों में जमीन पर बैठी हुई थी और उसकी साड़ी कई कांटों में उलझी हुई थी। हम दोनों ने उसकी साड़ी को कांटों से निकाला और वापस खुली जगह की तरफ आ रहे थे कि मैं किसी के कराने की आवाज सुनकर चौंक गया। मधु और शक्ति ने भी ये आवाज सुन ली। वो आवाज झाड़ियों की तरफ से आ रही थी। मैंने ऊँटों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और पिस्तौल संभाले झाड़ियों में घुस गया। कराने की आवाज बदसूर सुनाई दे रही थी। तकरीबन 10 गज आगे निकलकर मैं ठिठक गया। वही लड़की जो मंदिर से पुजारी के साथ भागी थी, झाड़ियों में उलझी हुई जमीन पर पड़ी करा रही थी। उसके जिस्म का मुख्तसर लिबास कांटों में उलझा हुआ था। उसके चेहरे, पिंडलियों, बाहों और बदन की खारूस हिस्से पर खराशें नजर आ रही थी जो लिबास की कैद से आजाद थे। किकर के सुई की तरह लंबे कांटों ने उसे छिलनी करके रख दिया था। उसके दोनों पैरों में भी कई कांटे पैबूस थे। मुझे देखकर उसके चेहरे पर खून की पिलाहट कुछ और गहरी हो गई। मुझे मत मारना, वो खौफजदा लहजे में अकलाई। भगवान के लिए मुझे मत मारना। मैं निर्दोष हूँ, मेरा कोई दोष नहीं। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैंने कहते हुए पिस्तौल जेब में रख लिया और उसके करीब बैठ गया। उसके दोनों पैरों में कई कांटे पैबूस थे और पूरे बदन पर खराशें गहरी थी जिनसे खून भी रिस रहा था। मैंने शक्ति को आवाज देकर बुला लिया। उस लड़की को देखकर वो भी चौंक गया। हम दोनों ने उसे कांटों से निजात दिलाई और तकरीबन 15 मिनट बाद उसे लेकर झाड़ियों से बाहर आ गए। मधु खूनख्वार नजरों से उसी की तरफ देख रही थी। लड़की बहुत खौफजदा थी। उसका ख्याल था कि हम उसे मार डालेंगे और वो रो रो कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रही थी। मैं सच कहती हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, वो कह रही थी। श्याम मुझे आज सुबह लेकर आया था अपने मेहमानों की सेवा के लिए। मेरा इन लोगों से कोई और ताल्लुक नहीं है। श्याम? ये कौन? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। वही पंडित श्याम जो मुझे छोड़कर भाग गया, बेगैरत। लड़की की बातों से मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो सच कह रही थी। अगर हमें यहाँ फंसाने की कोई कोशिश की गई थी तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। उसे तो फीस देकर यहाँ ठाकुरे का दिल बहलाने के लिए लाया गया था। कहाँ रहती हो? मैंने पूछा। दिलवाड़ा बीकानेर हाउस के पीछे, उसने जवाब दिया। चलो, हम तुम्हें रास्ते में कहीं छोड़ देंगे। लेकिन मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, लेकिन अगर तुमने पुलिस को या किसी और को हमारे बारे में बताया तो हम तुम्हें तलाश कर लेंगे और फिर तुम जिंदा नहीं बच सकोगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं तो कल ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी, उसने जवाब दिया। उस रंग के रास्ते मंदिर के तहखाने में जाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। इस वक्त अंधेरा भी फैलने लगा था। हम तीनों में एक तवील चक्कर काटते हुए दूसरी तरफ सड़क पर मंदिर से तकरीबन 100 गज आगे निकल आए। दुकानें और मंदिर की सीढ़ियां वहां से साफ नजर आ रही थी। जब हम यहाँ आए थे तो कई गाड़ियां खड़ी थी और खासी रौनक थी, लेकिन अब वहां मुकम्मल सन्नाटा था। दुकानें बंद थी, गाड़ियां तो क्या, किसी जीरू का निशान भी नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता हमारी फियाट वहां खड़ी थी। शक्ति, तुम जाकर गाड़ी ले आओ, हम यहीं खड़े रहते हैं, मैंने कहा और जेब से रिंग निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। शक्ति मंदिर की तरफ चला गया। मैंने मधु की तरफ देखा। उसके कपड़ों को ठाकरे ने फाड़ दिया था। अपनी बरनगी छुपाने के लिए उसने साड़ी का पल्लू पूरी तरह सीने पर फैलाकर उसके दोनों कोने पीछे गर्दन पर बांध लिए थे। मैं दूसरी लड़की की तरफ देखने लगा और फिर मैंने कमर पर बंधा हुआ चुंदरी जैसा रंग बिरंगा पटका खोलकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। समित्रा का मेरी कमर पर बंधा हुआ पटका इस तरह काम आ गया था। अलबत्ता मेरी बलदार पगड़ी लड़ाई के दौरान तहखाने में ही गिर गई थी। उस लड़की ने पटका खोलकर चादर की तरह जिस्म पर लपेट लिया। शक्ति कार के करीब पहुंच गया और फिर एक पुजारी को मंदिर की सीढ़ी से उतरकर उस तरफ आते देखकर मैं चौंक गया। वो 2-3 मिनट तक आपस में कुछ बातें करते रहे। फिर शक्ति कार में बैठ गया। कार हमारे करीब आकर रुक गई। मैं पैसेंजर सीट पर बैठ गया और दोनों लड़कियां पीछे बैठ गई। वो पुजारी क्या कह रहा था? मैंने पूछा। कह रहा था कि मंदिर के तहखाने में खून हो गया है। मंदिर का बड़ा पुजारी पंडित श्याम और उसके मेहमान गायब हैं। लोगों को जब पता चला तो सब भाग गए। उसने किसी से कहा था कि जाते हुए नेहरू मार की पुलिस चौकी में इतला दे दे और उसे परेशानी है कि पुलिस अभी तक क्यों नहीं पहुंची। मुझसे कह रहा था कि हम जाते हुए चौकी को बता दें। उसे तुम पर शुबा तो नहीं हुआ? नहीं, शक्ति ने नफी में सारी लाया।
मैंने उसे बताया था कि हम मंदिर से निकलकर इस तरफ टीलों पर चले गए थे। हमें कुछ मालूम नहीं कि हमारे बाद मंदिर में क्या हुआ था। ठीक है, मैंने इत्मीनान का सांस लिया। कार मंदिर वाली सड़क से निकलकर मेन रोड पर आ गई। अंधेरा गहरा हो गया था। शक्ति ने कार के हेडलैम्प्स रोशन कर दिए, लेकिन अंदर की बत्ती नहीं जलाई। तकरीबन 1 मील का फासला तय करने के बाद सामने से एक गाड़ी आती हुई नजर आई। हेडलैम्प्स की रोशनियों के बीच में ऊपर सुर्ख बत्ती भी स्पार्क करती हुई दिखाई दे रही थी। पुलिस की गाड़ी है, शक्ति ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। अगर रुकने का इशारा किया जाए तो कार रोक लेना, और तुम सब लोग एक बात सुन लो। मैंने पीछे मुड़ते हुए कहा, हम जीन मंदिरों की यात्रा से आ रहे हैं। हमें हनुमान मंदिर में होने वाले किसी वाक़े का कोई इल्म नहीं। मेरी नजरें उस लड़की के चेहरे पर मरकूज थी। उसने इस बात में सर हिला दिया। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। सामने से आने वाली पुलिस की गाड़ी सड़क के वस्त में खड़ी हो गई। 2 मुसल्ला पुलिस वाले उतरकर सड़क के बीच में खड़े हो गए। शक्ति ने उनके करीब पहुंचकर गाड़ी रोक ली। एक पुलिस वाला राइफल ताने वहीं खड़ा रहा और दूसरा जो सब इंस्पेक्टर था बारूब लहजे में बोला, जीन मंदिरों की यात्रा को गए थे महाराज, हमसे कोई गलती हो गई क्या? शक्ति ने लजाजत भरे लहजे में कहा। हनुमान मंदिर भी गए थे? ऑफिसर ने पूछा। नहीं महाराज, शक्ति ने जवाब दिया। हमने सोचा था वापसी पर हनुमान जी के मंदिर जरूर जावेंगे, मगर मेरी पत्नी ये भगवान, उसने हाथ से पीछे बैठी हुई लड़की की तरफ इशारा किया, एक ढुलान से कांटेदार झाड़ियों में गिर पड़ी। कांटों से सारा शरीर छिल गया, इसलिए हम हनुमान जी के मंदिर भी नहीं जा सके। क्या मुंह लेकर जावेगी ये हनुमान जी के सामने? सब इंस्पेक्टर ने झुककर पहले मुझे और फिर पीछे देखा। हम शरीफ आदमी थे, हमारे साथ 2 औरतें थी, हम तो किसी जुर्म में मुलव्वस हो ही नहीं सकते थे। और फिर इस वक्त पीछे से जीन मंदिरों की तरफ से आने वाली आखिरी बस भी पहुंच गई। सब इंस्पेक्टर ने हमें जाने का इशारा किया और बस को रुकने के लिए हाथ उठा दिया। बाकी रास्ते में कोई वाकया पेश नहीं आया। शक्ति कार को मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाता हुआ बीकानेर हाउस पैलेस होटल के पिछली तरफ ले गया। वो लड़की रास्ते में उतरना चाहती थी, मगर शक्ति उसे घर तक पहुंचाना चाहता था। वो रास्ता बताती रही और बिलाकर शक्ति ने कार एक बंगले के सामने रोक ली। वो लड़की हमारा शुक्रिया अदा करके कार से उतर गई। शक्ति ने कार उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ाई जब तक बंगले का गेट खुलने के बाद वो लड़की अंदर नहीं चली गई। अब तुम्हें जाना है, गाड़ी उस तरफ मोड़ लो, मैंने कहा। अप्पू ने खोरी किराए पर ले लिया गुरु, तुम भी देख लो, शक्ति ने कार एक सड़क पर घुमाते हुए कहा। तकरीबन 15 मिनट बाद उसने कार एक पुरानी सी इमारत के सामने रोक ली और हम नीचे उतर आए। वो इमारत किसी जमाने में पुरशिकवा हवेली रही होगी, मगर अब किसी खंडर का मंदिर पेश कर रही थी। उसमें एक दूसरे से फासले पर चंद मकान ऐसे थे जो अब भी राइश के काबिल थे, और उन्हीं में एक मकान शक्ति के लिए था। यूं तो उस मकान के 3 कमरे थे, लेकिन राइश के काबिल एक ही था। एक कमरे की आधी छत गिरी हुई थी और दूसरे की छत सिरे से थी ही नहीं। कमरे में एक चारपाई, 2 कुर्सियां और जरूरत की दूसरी चीजें मौजूद थी। बैठो गुरु, शक्ति ने एक कुर्सी साफ कर दी और फिर मधु की तरफ देखते हुए बोला, गुरु के लिए चाय लाओ अच्छी सी। मधु उस कमरे में चली गई जिसकी छत आधी थी। तकरीबन 15 मिनट बाद वो बगैर दूध के चाय बनाकर ले आई। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मैंने मधु की तरफ देखते हुए कहा, तुमने पहले हमें वहां फंसाया क्यों था? मैंने रेस्टोरेंट में तुम लोगों की बातें सुन ली थी, मधु ने मुस्कुराते हुए कहा। मंदिर पहुंचकर मैंने सोचा कि ठाकुरे तक पहुंचने के लिए पता नहीं तुम लोग कौन सा तरीका इख्तियार करोगे और इसमें कामयाबी हो सकता है ना हो। लिहाजा मैंने पुजारी श्यामलाल को बता दिया कि ठाकरे को जिस शख्स की तलाश है वो इस वक्त मेरे साथ मंदिर में मौजूद है। श्यामलाल मुझे खुफिया रास्ते से तहखाने में ठाकरे के पास ले गया और वहीं यह मंसूबा बना कि तुम दोनों को किस तरह तहखाने में लाया जाए। तुम दोनों के बारे में मुझे पूरा विश्वास था कि तुम इनके काबू में नहीं आओगे। वैसे मैं भी पूरी तरह तैयार थी। तुम तो वाकई बहुत होशियार निकली, मैंने उसकी तारीफ की। चाय पीने के बाद मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुका। शक्ति इमारत के बाहर तक मुझे रुखसत करने के लिए आया। मैंने कार में बैठकर इंजन स्टार्ट किया और उसकी तरफ हाथ हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। 2-3 रोज गुजर गए। इसी दौरान टेलीफोन पर शक्ति से शहर की खबरें तो मालूम होती रही, मगर कोई खास वाकया पेश नहीं आया। अमृत ठाकरे और हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित श्यामलाल के बारे में भी कोई खबर नहीं थी। शक्ति और उसके साथ ही नागराज का ठिकाना तलाश कर रहे थे, मगर अभी तक इस सिलसिले में कोई भी कामयाबी नहीं हुई थी। चौथे रोज शक्ति से फोन पर मिलने वाली खबर बड़ी धमाका खेज थी।